تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں ریکوری کا آغاز ہو گیا ہے۔ چیئرمین نیب نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کی جائیدادیں فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے اپنے نمائندے ارشد علی سے۔ ارشد علی، بڑی خبر آ رہی ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جو ہے وہ نیب لاہور کی جانب سے سزا یافتہ ملزم سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جرمانے کی مد میں جو ان کی جائیدادیں ہیں، اس حوالے سے نیب لاہور نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جو عدالت کی جانب سے جرمانہ کیا گیا ہے، 8 ملین پاؤنڈز جرمانہ کیا گیا تھا، ان کی جائیدادوں کو اب فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے نیب لاہور میں تمام متعلقہ ڈی سیز کو جو ہے وہ باقاعدہ مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے، جبکہ ایونیو فیلڈ اپارٹمنٹس میں نواز شریف کو 10 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ جرمانہ ہوا تھا، جس کی پاکستانی مد میں جو ہے وہ رقم کی اگر بات کی جائے تو 1.85 ارب روپے جو ہے وہ اس حساب سے جرمانے کی رقم نواز شریف کی جانب بنتی ہے۔ اس حوالے سے نیب لاہور کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس حوالے سے تمام ڈسٹرکٹ کے جہاں جہاں نواز شریف کی جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز پائی جا رہی ہیں، اس حوالے سے تمام ڈی سیز کو جو ہے وہ مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جائیدادوں کی تفصیلات جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو سیل کی گئی تھی اس کو عدالت جو نیب لاہور کو آگاہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیب لاہور متعلقہ جو ہے وہ ان کی نیلامی کے حوالے سے باقاعدہ اشتہار جاری کرے گا، اور پھر جس سے ہی تاریخ مقرر ہوگی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایونیو فیلڈ اپارٹمنٹس میں جو ریکوری جرمانے کی مد میں ریکوری کی جا رہی ہے نیب لاہور کی جانب سے، وہ جائیدادیں فروخت ہوں گی اور اس کی مالیت جو ہے وہ جو 1.85 ارب روپے بتائی جا رہی ہے، اس کی جو ہے وہ مالیت کے مطابق ان کی جائیدادوں کو فروخت کیا جائے گا، اور اس حوالے سے سرکار کے جو خزانے میں رقم ہوگی وہ نواز شریف کی جائیدادوں کو فروخت کرنے کے بعد سرکاری خزانے میں یہ رقم جو ہے وہ جمع کروائی جائے گی۔ تاہم جو ہے وہ چیئرمین نیب جسٹس جوید اقبال جو ہے وہ ان کی نگرانی میں یہ تمام تر پروسیس کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے چیئرمین نیب کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آگاہ بھی کر دیا گیا ہے، اور متعلقہ طور پر جو ہے وہ نیب لاہور کی جانب سے اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس سے قبل جو ہے وہ نیب لاہور کی جانب سے بھی نواز شریف کی جو جائیدادیں تھی اس کو منجمد کیا گیا ہے، اور یہ بھی نیب کے پاس اختیار ہے اور تمام تر ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے۔ تاہم اب ریکارڈ کے مطابق تمام متعلقہ ڈسٹرکٹ کے جو ڈی سی صاحبان ہیں ان کو مراسلہ بھی نیب لاہور کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے وہ جلد جو ہے وہ نیب لاہور کو اپنے جائیدادوں کے حوالے سے رپورٹ پیش کریں گے۔ ٹھیک ہے ارشد علی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اہم خبر سے اس وقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں ریکوری کا آغاز اب باقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف سے 8 ملین پاؤنڈ کی برآمدگی کے لیے جائیداد فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ کیس میں نواز شریف کو 10 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا بھی دی گئی تھی۔ مریم نواز کو 7 سال قید اور 2 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا دی گئی تھی، اور اب باقاعدہ طور پر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں ریکوری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بہت بڑا کیس ہے جس میں باقاعدہ سزا دی گئی تھی میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اپنے ناظرین کو یاد دلا دیں، اس کیس میں ریکوری کا اب آغاز کیا گیا ہے۔ نواز شریف سے 8 ملین پاؤنڈ کی برآمدگی کے لیے جائیداد ان کی فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جو جائیدادیں ان کی ہیں ان کو باقاعدہ سیل بھی کیا گیا تھا، اور اب ان کو فروخت کر کے باقاعدہ ریکوری کی جائے گی۔ جو جرمانہ ان کے اوپر عائد کیا گیا تھا میاں محمد نواز شریف کے اوپر اور مریم نواز کے اوپر، نواز شریف کی جائیداد نیب عدالت کے حکم پر ابھی بھی منجمد ہیں، اور ان منجمد جائیدادوں کو فروخت کیا جائے گا، ان کی نیلامی کی جائے گی، اور ان سے جو ریکوری ہوگی وہ قومی خزانے میں رقم جمع کرائی جائے گی۔ جس طرح ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ 1.85 ارب پاکستانی روپے بنتے ہیں، یہ 1.85 ارب روپے میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز سے ریکور کرنا ہے نیب نے۔ کیس میں نواز شریف کو آپ کو یاد دلائیں کہ 10 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی، اور مریم نواز کو 7 سال قید اور 2 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قبائلی ضلع کرم کے حلقہ NA 45 میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے انتخابی دھاندلی کا یہ معاملہ، ایسے میں تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ میں تحریک انصاف کے فخر زمان ذمہ دار قرار پائے ہیں۔ کمیٹی نے رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہے۔ ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ اسلام آباد سے دیکھیے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ تحریک انصاف کے MNA فخر زمان کی رکنیت خطرے میں۔
जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में तहकीकाती टीम की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश। रुकने पार्लियामेंट जालसाजी और पोस्टल बैलेट के जरिए इंतखाबी धांधली मंसूबे का जिम्मेदार और इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 175B की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार। DSP कुरम मोहम्मदी खान और स्पेशल ब्रांच एहलकार वसीउल्लाह भी मुलव्वस। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टल बैलेट के लिए मिलने वाली दरखास्तें जाली थी, जो फखर जमान ने इंतखाबी नतायज पर असरअंदाज होने के लिए तैयार करवाई। कई दरखास्तें वफात पाने वाले और रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन की थी। पोस्टल बैलेट की दरखास्तें देने वालों की इलेक्शन के दिन ड्यूटी भी नहीं थी। पुलिस की अपनी इंक्वायरी के मुताबिक तकरीबन तमाम दरखास्तों पर जाली दस्तखत थे। रिपोर्ट के मुताबिक फखर जमान ने सारा किया धरा मुखालफिन का करार दिया। कहा मुखालफिन जाली आर्डर फैलाकर इलेक्शन खराब करना चाहते थे। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक फखर जमान ने बतौर सबूत अपनी नाअहली का इलेक्शन कमीशन का जाली हुक्म भी पेश किया। और आपको बताएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत और अपोजिशन में अल्फाज की जंग जारी है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने EVM को धांधली का मंसूबा करार दिया। बाबर अवान कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राबतों में बड़ी पेशरफ्त हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले पाकिस्तान का मसला इंतखाबी इस्लाहात नहीं, इलेक्शन चोरी है। एतजाज एहसन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हिमायत कर दी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्जी गोलाबारी आपको भी दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग मशीन है। ये पिछले हफ्ते ऑपोजिशन से हमने राब्ता किया। वो कहते थे कि आप ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी दोनों हाउसेस की बुलाएं और उसके सामने ये बिल्स रखे जाएं। हुकूमत उसके लिए तैयार है। पार्टी को सपोर्ट करनी चाहिए। मैं तो अपनी पार्टी में ये बार बार कह रहा हूँ, अब वो ठप्पा ब्रिगेड नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे राज पर्दे में हैं, मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा। किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया और आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम खुद हुकूमत ने तजवीज़ किया था। आइन में लिखे कि जो आदमी इलेक्शन के मामले में मुदाखलत करेगा उस पर आर्टिकल 6 का निफाज होगा। शाहिद खाकान अब्बासी कम अज कम 8 मरतबा तो मैंने देखा उनको कहते हुए कि हर इलेक्शन चोरी हुआ है और उन्होंने भी जो इलेक्शन कराया वो चोरी कराया। हुकूमत जॉइंट सेशन के जरिए इसे बुलडोज करती है तो फिर साफ जाहिर है कि ये अगला इलेक्शन चोरी करना चाहती है। हुकूमत अब आखिरी मर्तबा एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात और आगे बढ़ के इस कमेटी के जरिए से रिफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे। और लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पार्टी में कोई नून मीम और शीन नहीं है, सब साथ हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने किसी से राबते की भी तरदीद कर दी है। कल नून मीम शीन जो है वो कोई मेरे दाएं था, कोई बाएं था, कोई सामने था, तो फिर आप जो है वो इस चीज़ को तस्लीम कर लें। अब भी अगर नून मेरे जो है वो दाएं हो, शीन मेरे बाएं हो, तो फिर आपको तसल्ली हो जानी चाहिए। हमारा किसी से जो है वो राब्ता नहीं है, लेकिन देखें सारे लोग जो इस मुल्क के अंदर हैं सभी से किसी न किसी जगह पे या किसी न किसी का जो है वो कोई तल्लक, कोई मुलाकात या सरे राह कोई बात हो जाती है। हम अपनी पार्टी को सियासी बुनियादों पे जो है वो मुनज़्ज़म कर रहे हैं। मरियम नवाज़ शरीफ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल है। उन्होंने पार्टी के बयानिए को जो है वो आगे बढ़ाया है। इसी तरह से मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज शरीफ वो पार्टी के यानी वो की लीडरशिप है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सयाहत, खेलों और कारोबारी सरगर्मियों के लिए महफूज तरीन मुल्क है। आर्मी चीफ का दुनिया को पैगाम। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूनानी सफ़ीर से मुलाकात में कहा है कि अफ़गान अवाम के मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए पुराज़्म है। यूनानी सफ़ीर ने अफ़गान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। उस्मान खान की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का कहना है कि न्यूट्रल वेन्यूज़ पर कभी भी होम सीरीज़ नहीं खेलेंगे। वेस्टर्न ब्लॉक हमेशा अपना मतलब निकलवाता है और छोड़ देता है, अब हमें अपनी इज्जत खुद बनाना होगी। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की जानिब से भी दौरा पाकिस्तान ख़त्म करने पर शायकीन क्रिकेट मायूस हो गए हैं। कहते हैं कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ये कहना कि सिक्योरिटी थ्रेट है समझ से बाहर है। खेल को, स्पोर्ट्स को ना वो पॉलिटिसाइज कर दिया है, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये डरपोक लोग हैं, ये पाकिस्तान में कहाँ खेल सकते हैं। ये सिर्फ खेलने की वजह से नहीं, ये पहले उसके दिल के अंदर कोई डर थी।
तो यहाँ तो वो दिलेर लोग आएंगे, डरपोक लोग नहीं आएंगे। इंडिया और जितने भी अदर जो कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनसे हजम नहीं होता, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो वो इसी तरह के हथकंडे आजमाते हैं। इंग्लैंड को नहीं चाहिए था, स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए थी, उनको कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए था। सर मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी न्यूजीलैंड को करना सिक्योरिटी मिल रही है, इतनी किसी भी वज़ीर आज़म को, किसी भी मुल्क के वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी नहीं मिली जितनी इनको सिक्योरिटी मिली है। ये पाकिस्तान को करना में नुकसान देने के चक्कर में इन्होंने ये बहाना बनाया है। खिलाड़ियों को चाहिए कि वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे और इनका जवाब मैदानों में दे। वर्ल्ड कप जीत के लाए तब इनको पता चलेगा पाकिस्तान की क्रिकेट अभी बाकी है। कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी मगर अमवात का सिलसिला जारी है। एक दिन में मजीद 81 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। 1897 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। NCOC ने 1 अक्टूबर से वैक्सीनेशन न करवाने वालों के लिए पाबंदियां मजीद सख्त करने का किया है फैसला। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 22 पंजाब में 42, सिंध में 19 और खैबर पख्तूनख्वा में 14 अमवात हुई हैं। इस्लामाबाद में 2 और आज़ाद कश्मीर में 4 मरीज़ों का इंतकाल हुआ है। मजमूई अमवात की तादाद 27,327 हो गई है। 24 घंटे के दौरान मुल्क में 1,897 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं। NCOC ने अवाम से वैक्सीन लगाने की अपील करते हुए कहा है कि 1 अक्टूबर से नॉन वैक्सीनेटेड अफराद के लिए बहुत सी सहूलियात ख़त्म हो जाएंगी। अभी आपको इस्लामाबाद से खबर देंगे। असद उमर की सदारत में NCOC का इजलास हुआ है। इजलास में 6 अजला से इजाफी पाबंदियां 22 सितंबर से हटाने का फैसला कर लिया गया है। अरहम खान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अरहम खान, बताइएगा और क्या कुछ बातें सामने आई हैं? ये इजलास हुआ NCOC का। वज़ीरे जो मनसूबाबंदी और सरबरा NCOC असद उमर हैं और जो 6 अजला थे जिनमें पाबंदियां बरकरार थीं उनमें नरमी का फैसला किया गया है। 22 सितंबर के बाद से यानी 23 सितंबर से इन अजला में पाबंदियों में नरमी कर दी गई है और इन अजला में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बनू शामिल हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें कमी आई है और उसके बाद ही ये फैसला किया गया है। जबकि दूसरी तरफ मुल्क भर में जो पहले से नाफिजुल अमल SOPs हैं वो 30 सितंबर तक जारी रहेंगी और इन पाबंदियों का जो जायजा है वो 28 सितंबर को NCOC के इजलास में होगा और रोजाना की बुनियाद पर NCOC जो है वो बीमारी के फैलाव के हवाले से जायजा ले रहा है। सेहत की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी निगरानी की जा रही है और बीमारी के फैलाव को कंट्रोल करने की जो जरूरत पेश आई है उस हवाले से कहा गया है कि उसी मुनासबत से फैसले किए जाएंगे। जिस तरह से अगर बीमारी ज्यादा फैलेगी तो पाबंदियां सख्त भी की जा सकती हैं, लेकिन अभी जो 6 अजला हैं उनमें पाबंदियां नरम कर दी गई हैं। इसके अलावा एक और अहम चीज जो साइनोफार्म वैक्सीन है उसके हवाले से कहा गया है। बहुत ज्यादा लोगों में अभाव पाया जा रहा था कि ये शायद वैक्सीन खत्म हो गई है, तो कहा गया है इजलास में कि मुल्क में ये वाफिर मिकदार में मौजूद है। ठीक है, ये भी कहा गया है कि मुल्क में वाफिर मिकदार में मौजूद है, लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेहद शुक्रिया आपका अरहम। लाहौर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम ना डाली जा सकी। सब्ज़ार में फार्मेसी से 5 लाख रुपए लूट लिए गए। वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। जहांगीर खान की रिपोर्ट में देखिए। और कारकर्दगी कम, शिकायत ज़्यादा। वज़ीर आज़म के हुक्म पर मुआविन ख़ुसूसी तवानाई ताबिश गौहर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको बताएं कि ताबिश गौहर पर PSO, फेस्को और मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में मंजूर नज़र अफसरान की तैनाती का इल्ज़ाम था। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं, बेहतर है इस्तीफा दे दें। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। हुक्काम वज़ारत तवानाई के मुताबिक वज़ीर आज़म के अलावा वज़ीर तवानाई हमाद अजहर भी ताबिश गौहर की कारकर्दगी से खुश नहीं थे। हमाद अजहर ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात की जिसमें ताबिश गौहर के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, यहाँ तक कि उन्हें ओहदे पर बरकरार रखने की सूरत में बतौर वज़ीर ओहदे से इस्तीफा देने की पेशकश भी की। मामले की नज़ाकत को समझते हुए वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से ताबिश गौहर से इस्तीफा तलब किया गया, जो मंजूर भी कर लिया गया है। ताबिश गौहर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने PSO, फेस्को और कोहाला हाइडल पावर प्लांट समेत मुतअद्दिद इदारों में मंजूर नज़र अफराद को तैनात कराया। ताबिश गौहर को अक्टूबर 2020 में वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई बनाया गया था। चंद माह कबल के इलेक्ट्रिक के मालिक और अलजमाया ग्रुप के सरबराह शेख अब्दुल अजीज अलजमाया ने भी वज़ीर आज़म को खत लिखा था जिसमें ताबिश गौहर के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। और अक़रबा परवरी ताबिश गौहर को ले डूबी समा ने अंदरूनी कहानी ढूंढ निकाली है। हमाद अजहर के साथ मुतअद्दिद वफाकी वज़रा को ताबिश गौहर पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। शौकत तरीन, असद उमर, अली जैदी भी मुआविन ख़ुसूसी से नाखुश थे। मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब, ये बताइए ताबिश गौहर के इस्तीफ़े के पीछे क्या कहानी है? देखिए, बहुत सारी वजूहात हैं ताबिश गौहर के
देखी, जिसमें सबसे अहम वजह जो सामने आई है वो अपने करीबी लोगों को नवाजना है ओहदे के दौरान। शौकत तरीन, असद उमर, अली जैदी, हमाद अजहर, ये 4 वफाकी वज़रा ऐसे थे जो कि हम ताबिश गौहर की कारकर्दगी से बिल्कुल खुश नहीं थे। नेशनल रिफाइनरी पॉलिसी ताबिश गौहर ने बनाई थी गुज़श्ता महीने और काबीना से मंजूर कराने की कोशिश की थी, ताहम इन चारों वज़रा ने इस पॉलिसी की शदीद मुखालफत की थी और इल्ज़ाम लगाया था कि इस पॉलिसी से लग यही रहा है कि एक निजी ऑयल कंपनी बाइकों को नवाजने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाइकों के डायरेक्टर भी रह चुके हैं ताबिश गौहर। इसके अलावा करीबी अफराद को बिजली कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी तैनात किया है ताबिश गौहर ने, जिनमें 9 में से 7 कंपनियों के डायरेक्टर्स जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो ताबिश गौहर के करीबी साथी थे, जबकि दीगर 15 अफराद को भी डायरेक्टर लगाया गया तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों में। ये सारे लोग ताबिश गौहर के करीबी साथी थे। एमडी चेयरमैन NTDCC के हवाले से भी कहा जा रहा है कि नवीद इस्माइल जो है वो भी ताबिश गौहर के करीबी साथी हैं और ये सभी लोग ताबिश गौहर ने ही अपने मंजूर नज़र अफराद को अपने दौर के दौरान तैनात कराया। जी बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। साबुन, टिश्यू पेपर समेत दीगर अशिया महंगी हो गई हैं। हम बात करेंगे, शकील अहमद हमारे साथ हैं, उनसे। शकील, बताइएगा और कौन कौन सी अशिया हैं जिन पर दाम बढ़ाए गए हैं? देखिए, मुतअद्दिद अशिया हैं जिसमें साबुन है, टिश्यू पेपर्स, टॉयलेट क्लीनर्स हैं, कपड़े धोने वाला साबुन तकरीबन 22 रुपये फी केजी महंगा किया गया है और बाथ सोप जो है वो 10 रुपये, इसी तरह टिश्यू जो है उसमें 3 रुपये इजाफा किया गया है और साथ साथ 550 मिलीलीटर के जो क्लीनर्स हैं उसमें 7 रुपये, इसी तरह 500 मिलीलीटर के जो ग्लास क्लीनर्स हैं उनकी कीमत में 12 रुपये इजाफा किया गया है। मुतअद्दिद अशिया हैं जिन पर फौरी इतलाक होगा, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है कि पाकिस्तान वनस्पति घी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने घी की कीमतों में 8 से 10 रुपये कमी का ऐलान किया गया है, क्योंकि हुकूमत ने फर्दर टैक्स जो था वो आयद किया था 3%, वो वापस ले लिया गया है टैक्स और इस तरह घी की कीमतों में 8 से 10 रुपये फी केजी कमी का ऐलान किया गया है। कुकिंग ऑयल पर भी इसका इतलाक होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब मौसम की बात करें, लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। कचहरी और सेशन कोर्ट में पानी जमा होने से वकला और साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर में सुबह के वक्त आसमान पर काले बादल छाए और खुलकर बरसे। मोहनी रोड, भाटी चौक, माल रोड, समनाबाद, इस्लामपुरा, सेक्रेटेरिएट समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हुई, जिससे स्कूलों और दफातर जाने वाले अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत ट्रैफिक जाम है, पानी का बहुत जलन बुरा हाल है ना, पानी सड़कों से पिछों भी रस्ते बंद ने, इधरों भी बंद ने, सारे पासे बंद ने, बहुत बुरी हालत है। ये मैं तकरीबन चेयरिंग क्रॉस से फुली ब्लॉक हूँ, वहाँ से बिल्कुल स्लो 1 घंटा मुझे हो गया यहाँ तक पहुँचते। कचहरी और सेशन कोर्ट में पानी जमा होने से वकला और साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 71 मिलीमीटर हुई। गुलशन रावी में 59, लक्ष्मी चौक में 53 और फरखाबाद में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश मुतवक्के है, जिससे आइंदा चंद रोज में मौसम में वाज़े तब्दीली होगी। सिंध में मानसून का नया सिस्टम कल रात दाखिल होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बदीन, थरपारकर और उमरकोट में तेज बारिश का इम्कान है। कराची में 23, 24 और 25 सितंबर को हल्की या दरमियानी बारिश हो सकती है। मानसून हवाओं का नया सिलसिला 22 की रात से होगा। सिंध के कुछ इलाकों में दाखिल, थरपारकर, बदीन और हो सकता है ऊपर सक्खर डिवीजन के कुछ एरियाज में। थरपारकर, बदीन और उमरकोट इन एरियाज में है, हैवी स्पेल भी हो सकता है। कराची में 23 की लेट इवनिंग या रात में इम्कान है। हल्की से दरमियानी बारिश का स्पेल है, कोई इतनी बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। 23, 24 और फिर 25 की दोपहर तक चल सकता है, लेकिन मुसलसल नहीं होगी, बीच में ये मतलब गैप्स के साथ होगी और लाइट टू मॉडरेट, जनरली टू मॉडरेट रेन है। सितंबर के आखिरी दिनों में भी शायद एक स्पेल और आ जाए। 29-30 सितंबर को कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उधर घोटकी में खानपुर नहर के करीब नहर में 100 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। सैकड़ों एकड़ पर फैली फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। गांव करीमदाद गडानी के मकाम पर शिगाफ पड़ने से पानी तेज़ी से इलाके में फैल रहा है। मकीनों का कहना है कि इतला के बावजूद महकमा अनहार की टीमें नहीं पहुंच सकी हैं, जिसके बायस देहाती अपनी मदद आप के तहत शिगाफ को पुर करने की कोशिशें कर रहे हैं। महकमा अनहार के मुताबिक टीमें मशीनरी के हमरा रवाना कर दी गई हैं और जल्द ही शिगाफ को पुर भी कर दिया जाएगा।
نون لیگ میں میم اور شین کی لڑائی باہر نہ چلی جائے، قیادت نے حل نکال لیا ہے۔ پارٹی اجلاس میں موبائل فونز لے جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ عمران شفقت ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ عمران، موبائل فونز پر پابندی لگ تو یوں رہا ہے جیسے اپنے نمائندگان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے تنظیمی اجلاس ہیں وہ ان کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں جو اجلاسوں میں ہونے والے تحفظات اور خدشات ہوتے ہیں اور پارٹی اختلافات ہوتے ہیں وہ باہر نہ جائیں، اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کی جانب سے تمام تنظیمی اجلاسوں میں آنے والے شرکاء کے لیے موبائل فون لانے پر پابندی لگائی گئی ہے اور پارٹی اجلاسوں میں ہونے والی باتیں باہر کی جاتی ہیں۔ اس پر قیادت کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ آج اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر ملتان ڈویژن کا اجلاس اور ملتان ڈویژن کے جتنے بھی عہدیداران تھے اور اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی تھے ان کے جو موبائل فون ہیں وہ باہر رکھوا دیے گئے ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق کہ یہ خبریں نہ لیک ہوں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے باقاعدہ طور پر پاکستان مسلم نون کی جانب سے۔ اور ملتان ڈویژن کے اجلاس سے قبل تمام شرکاء کو اس سلسلے میں موبائل فون اپنی اپنی گاڑیوں میں رکھنے کی جو ہدایات کی گئی تھی۔ بہت شکریہ، اس حوالے سے آپ آگاہ کر رہے تھے عمران۔ بحریہ ٹاؤن ہنگامہ آرائی کیس میں پولیس نے 27 مقدمہ سی کلاس کرنے کی رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی ہے۔ رپورٹ متعلقہ عدالت میں جمع نہ کرانے پر عدالت کا برہمی کا اظہار۔ سندھ ہائی کورٹ میں بحریہ ٹاؤن ہنگامہ آرائی کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس کی جانب سے 27 مقدمہ سی کلاس کرنے کی رپورٹ پیش کی گئی۔ سرکاری وکیل کے مطابق چالان پیش کر کے 5 مقدمات چلانا چاہتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے تفتیشی آفیسر کو ہدایت کی ہے کہ پہلے ATC منتظم جج کے پاس رپورٹ پیش کی جائے۔ سماعت 28 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور ٹوٹی پھوٹی گلیاں، سیوریج کے ناقص انتظامات، لاہور کے علاقے یوسف پارک کے مکینوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ رہائشی اپنے علاقے کا احوال بتا رہے ہیں۔ میرا نام ملک محمد رؤف ہے اور میں شاہدرہ کا رہائشی ہوں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ شاہدرہ کے لوگوں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے۔ اس وقت میں گلی نمبر 7 میں موجود ہوں۔ آپ کے سامنے کتنا گندا پانی ہے اور یہاں پہ بچے دن بہ دن بیمار ہو رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے شاہدرہ کی گلیاں ایسے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور سیوریج کا نظام درہم برہم ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو سارا گندا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ کوئی خوشی ہو کوئی غمی ہو، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم کس کو اپنے حالات بتائیں اور کہاں سے ہم گزریں گے اور کس کو ہم جا کے بتائیں اپنی یہ فریاد شاہدرہ کی کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں یہاں پہ۔ میری حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ خدارا شاہدرہ کے حالات پر رحم کیا جائے اور یہ جو گلیاں ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور سیوریج کا نظام دھرم برم ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔